Good morning, students. Today I am discussing with your board 2025 पेपर. अभी तक हम डिस्कशन कर रहे थे रिगार्डिंग इंग्लिश कंपलसरी 12th क्लास का बोर्ड का पेपर ही मेरे हाथ में है और अब तक हमने जो डिस्कशन किया वो सैंपल पेपर और सजेशंस एडवाइसेस बहुत सारी चीजें ली हमने, आइडियाज लगाए, ट्रिक्स ली. अब मेरे हाथ में जो है अब ये पूरा आपका 3 आवर्स 15 मिनट्स का टोटल ओवरऑल पेपर है. आप इसे देख सकते हो. 80 मार्क्स का जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं. ये आपके इंस्ट्रक्शंस रहे. नाउ here section A, as you can see, read the following passage carefully and answer the questions that follow. The bus rolled in through the gates and crunched on the gravel. It was always the familiar crunch that told him they were in. They broke up and jumped out with their bags and boxes, and outside, as he stood waiting for the rest to come down, the morning hill air felt good and smelled cool, clean, and fresh, and the birds were chirping in the row of trees that ran along the gravel way. When the last boy was out, the bus rolled off the gates again, and they crunched along the gravel towards the stone entry porch. As they went in, someone observed, "Why today is Saturday? Always like Saturday because the next day is Sunday, don't you?" He answered, "Yes." He thought, "Saturday? No day like it." Even class on Saturday was not as bad as on other days, and everyone, including the teacher, seemed happier with prospect of the evening and the morrow. For him, it was mainly the evening at fun at home with his mother. He had lost his father on other days. There was always homework to do and dinner to prepare. But on Saturday, they both were free. He did only a little of the work, homework, and his mother finished cooking early. Saturday evening meant a lot to him. And then there was, of course, the matinee on Sunday, about the only excitement of a rather quiet day. They passed the dining room. The boarders were at breakfast and they could hear the boys talking and clatter of plates and knives, forks, spoons, cups, and saucers. There was such a noise. They are having plantains this morning. Peter said, creeping up to one of the entrances. "Hey, Whiskey, let's have a plantain." He called out to the boy sitting at the table nearest to him. Whiskey scolded, but on second thoughts threw him a skin. It looked so funny that all laughed. क्या which was the family crunch? यहाँ पर आप देख सकते हो family crunch के बारे में लाइन आई थी. आप यहाँ पर देख सकते हो. The bus rolled in the gates. It was always the family crunch. Bus rolled in through the gates and crunch on the gravel. Next is who jumped out from the bus? बस में किसने jump किया? बस में से यहाँ पर भी आपका आया है the broke and jump out with their bags and boxes. वही. The next is मैं आपको बहुत समराइज करके इसका आंसर्स डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपका दिमाग जो है, आपका माइंड लेवल जो है, कहीं कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं हो और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो उसमें. Why did Sunday seem happier to everyone? क्योंकि सैटरडे जो होता है हमारा बहुत अच्छा दिन होता है. यहाँ पर आया है संडे ऑलवेज लाइक सैटरडे बिकॉज द नेक्स्ट डे इज संडे, और इसको आप बनाकर भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज हु यूज्ड टू बी फ्री ऑन सैटरडे? कौन फ्री लेना चाहता है सैटरडे को? He thought Saturday no day like it. Even class on Saturday was not as bad. इसमें से इसका आंसर होगा. What did Peter say? Peter said. अब did है ना, इसलिए आपको बता रही हूँ वहां पर होगा Peter. आपने आंसर लिखा होगा इसमें से, तो आंसर जो बनेगा Peter said. Says या कुछ भी नहीं आएगा say because वहां पर है did. Did के बाद यहाँ पर लगेगा sad. The Peter sad. उसके बाद में आप अपना आंसर जो है कंटिन्यू करेंगे. ये रहा यहाँ पे पीटर सेड क्रीपिंग अप टू वन ऑफ द एंट्रेंसेस. यहां से इसका आंसर बनेगा. नेक्स्ट इज एट अबाउट whom did the narrator state in this passage? किसके बारे में बता रहा है? वो अपने सैटरडे संडे के बारे में बता रहा है इसमें, और बहुत ज्यादा कंटिन्यूएशन में वो सारी चीजें इन्फॉर्म कर रहा है आपको सैटरडे संडे के बारे में. और यहाँ पर किसके बारे में बता रहा है? नैरेटर खुद के बारे में, अबाउट ओन एंड हिज मदर. यहाँ पे डिस्कशन उसका हो रहा है. Find out the word from the passage which is opposite in meaning to yesterday.
अपोजिट बताना है, मतलब एंटोनिम बताना है yesterday का। yesterday का अपोजिट जो होता है, इसमें आपको दे रखा है मोरो। तो मोरो होता है, वहां से ही मोरो वर्ड लिया है, जो आपका इस पैसेज में आया भी है, एंड आई अंडरलाइंड इट समवेयर, दिस वन, मोरो। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज सिमिलर टू बनाना। बनाना का यहां पर आया है प्लांटेन, प्राइमरीली मीन्स मेनली, यू कैन से, ठीक है। द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट पैसेज को हम थोड़ी देर में करते हैं, उससे पहले हम ये ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन बी जो है, यू आर मोहित मोनिका लिविंग इन जयपुर, यू आर सर्चिंग अ ग्रूम। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को जब भी एडवर्टाइजमेंट कराया है तो ग्रूम ब्राइड दोनों के लिए कराया है, कई बार ब्रदर सिस्टर दोनों के लिए कराया है। मैंने ज्यादातर इसमें आपको लास्ट टाइम जो करवाया था वो ये था, यू आर सर्चिंग ब्राइड फॉर योर ब्रदर। यहां पर आया यू आर सर्चिंग ग्रूम फ्रॉम योर सिस्टर। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई ऐसा इशू हुआ होगा आपको। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करना है फॉर अ न्यूज़पेपर टू एडवर्टाइज इन क्लासिफाइड कॉलम, तो वो आई थिंक ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। हमने क्लास में बहुत टाइम किया है। यू आर पवन पूजा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, राइट योर ओपिनियन इन फेवर ऑफ वुमेन एजुकेशन। वुमेन एम्पावरमेंट का हमने कई बार किया है और उसमें मैंने बोला है वुमेन के बारे में आप सारी चीजें डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पर वुमेन एजुकेशन के लिए आ गया, तो आई डोंट थिंक सो कि ये भी आपके लिए कोई टिपिकल टास्क रहा होगा, वैसे ये दोनों ऑप्शन में थे। कम टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, यू कैन सी योर स्कूल ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल टूर। एजुकेशनल ट्रिप पे हमने बहुत बार किया। राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स फॉर द स्कूल मैगजीन यूजिंग द गिवन हिंट्स एंड योर एक्सपीरियंस। मैंने आई हैव नेवर गिव यू हिंट, आई हैव नेवर गिव यू ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर आपको दिया है तो इट विल बी ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर यू। डेट एंड डे जो पहले आ जाता है, मोड ऑफ ट्रेवलिंग, कैसे जा रहे हैं, पार्टिसिपेंट कौन है, कौन गाइड कर रहा है, कहाँ कहाँ प्लेसेस घूमेंगे, और एजुकेशनल इंपॉर्टेंस जो भी है इसकी, सब कुछ घूमना क्यों इंपॉर्टेंट है। राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स, बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक के इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक पे मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया है, देख लीजिए, सेम टू सेम ये चीजें रिपीट हुई है आपके बोर्ड एग्जाम में भी। Write a letter to the editor of a local daily newspaper to draw the attention of authorities about the street lights that are not in working condition for many days in your locality. गणेश नगर जयपुर। यहाँ पर इस जगह मैंने आपको कराया है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल लाउड स्पीकर रिगार्डिंग लोकल इनसैनिटरी कंडीशंस के रिगार्डिंग। यहाँ पर आपको स्ट्रीट लाइट्स की रिगार्डिंग दे दिया कि अटेंशन रहे उस अथॉरिटीज की, जो स्ट्रीट लाइट्स में दी है वो वर्किंग कंडीशन पे नहीं है। तो ये भी उससे सिमिलर है, मतलब फॉर्मेट वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। बाकी जो 2-3 लाइन जो है आपको ऊपर नीचे करनी है, वहां पर इनसैनिटरी की जगह वर्किंग कंडीशन लगा देनी है स्ट्रीट लाइट्स की। You have read an advertisement in the Dainik Bhaskar about the post of a manager in Bal Vikas Committee. Write a job application. CV मैंने आपको बोला था आएगा. It is also known as resume. ये आपका आएगा ही आएगा, ध्यान रहे इस चीज का। फॉर दिस पोस्ट सेक्रेटरी ऑफ बाल विकास समिति जयपुर एंड अटैच योर सीवी। ये वही लेटर वाले फॉर्मेट से चलेगा और नीचे लास्ट में ब्रैकेट बनकर जब आ जाएगा तो आपके लिए और ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सेक्शन सी में आए, join the following sentences using the word given in bracket. I have found the pan, I lost it. मैंने आपको कभी भी ऑप्शन नहीं दिया, हमेशा कंफ्यूज करने के लिए चीजें बताइए, लेकिन बहुत ही इजी आया है। What is the answer is I have found the pen which I lost. That is your answer. Next is combine set of sentences into one as direct. Night came on or the room grew dark, making a कंपाउंड सेंटेंस। बहुत सारे तरीकों से बन सकता है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पर्टिकुलर वर्ड नहीं दिया, इन्होंने बोला है कंपाउंड सेंटेंस है। आप सो एंड दैट इन सबसे भी बना सकते हैं। नाइट केम ऑन, पुट कॉमा एंड, क्योंकि कंपाउंड है, मिश्रित है, जो आपके हिंदी में संयुक्त सरल मिश्रित वाक्य होते हैं उसके मिश्रित वाक्य है ये। एंड द रूम grew dark. Got it my point? Night came on and the room grew dark.
कंपाउंड सेंटेंस एक और तरीके से बन सकता है, यहां पर आप देखें, द रूम grew dark as night came on। यहां पर सो भी आ सकता है, ठीक है, बहुत कई तरह के बन सकता है, मेनी टाइप्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, fill in the blanks by choosing this correct phrasal verbs given in bracket। the burglars dashed the house, मैंने यहाँ पर the thief दिया था आपको, ठीक है, if you remember, ये आपकी कॉपी में आज का क्वेश्चन है, the burglars broke down the house। broke into नहीं होगा, broke down होगा, broke into नहीं होगा, broke down the house। he dash early in the morning, जो आप यूज भी करते हैं wake up, so he gets up early in the morning। he dash his departure for a week, क्या होगा, he put off, वो निकल गया वहां से। नेक्स्ट इज fill in the blanks by choosing the correct conjunction given in bracket। इसमें भी आपको conjunction given है which I have never gave you। birds fly dash fish swim, birds fly and fish swim। he was sleeping dash I was reading a book, he was sleeping while I was reading a book। Raju is dash an intelligent boy dash a good player। so Raju is not only an intelligent boy but also a good player। got it। कम टू द नेक्स्ट सेक्शन बी। ये मैंने आपको जाते जाते भी स्टूडेंट्स को बोला था कि इंडिगो चैप्टर देख लेना, इंडिगो चैप्टर से हो सकता है ज्यादातर आपका पैसेज आता है जो फ्लैमिंगो से आने वाला है। कई बार आपको बताया जब whenever I taught you blueprint, whenever I told you about the question paper, whenever I told you about the desk work questions और बोर्ड सैंपल क्वेश्चन, तो उसमें ज्यादातर चंपारण इंडिगो का ही आया है। और देख लीजिए लाइव एग्जाम्पल आपके बोर्ड में भी ये गांधी जी का ही आया है। गांधी डिड नॉट लीव, इंस्टेड he proceeded to Motihari, the capital of Champaran। several lawyers accompanied him at the railway station। a vast multitude greeted Gandhi। he went to a house and using it as headquarters continued his investigations। a report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village। Gandhi decided to go and see। the next morning he started out on the back of an elephant। he had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage। capital of Champaran was, यहाँ पर आया है फर्स्ट लाइन में, मोतीहरी। द कैपिटल ऑफ चंपारण मोतीहरी आंसर। नेक्स्ट, वेयर डिड वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीट गांधी? एट द विलेज, एट द हाउस, रेलवे स्टेशन और एट द हेडक्वार्टर। बताएं, हाँ बताएं खुद। Here you can see at the village. Answer is at the village. Who had been maltreated? Peasants. Who started out on the back of an elephant? Gandhi. Which place Gandhi used as his headquarters? A house. Who ordered Gandhi to return to town? Superintendent's messenger. Next is, here you can see some questions. Answer anyone? Describe एम हेमल। एम हेमल जो आपका लास्ट लेसन में आप लोगों ने पढ़ा है एम हेमल के बारे में, इसमें क्या है? एम हेमल में बताया है कि वो हेमल जो है, जो टीचर था उनका, वो लास्ट डे था उनका और वो छोड़कर जा रहे थे। ऐसे ही आपको इसमें लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन में डिस्क्राइब करना था। डिस्क्राइब द रेड ट्रैप सेलर। जो रेड ट्रैप सेलर था, जो रेड ट्रैप्स बेचने आया था, उसके बारे में डिस्क्राइब करना था। What did happen when the narrator started down a third time? थर्ड टाइम जब नैरेटर जो है वापस से नीचे गया पानी में, तो क्या हुआ था? ये आपका डीप वाटर से लिया है, जब वो स्विमिंग करना स्टार्ट कर रहा था। What was साहिब फुल नेम एंड what was the meaning of his name? साहिब का फुल नेम क्या था, उसका मीनिंग क्या था, ये आपके चैप्टर में गिवन है।
हमने जब लास्ट में मैंने आपको वीडियो में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बताए थे, तो मैं 17 to 18 रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन लिए थे। उनमें आप देख सकते हो ये दोनों थे, और ये दोनों जो है ये रोड साइड स्टैंड से लिया है, मैंने उस टाइम पे भी कहा था। और ये आपका कीपिंग क्वाइट से गिवन है। इसमें आप देख सकते हो और जैसा कि मैंने सब बच्चों को बोला था, कुछ बच्चों को ये पोम हार्ड लगती थी, तो व्हाट आई टोल्ड यू कि ठीक है आप बाकी की 4 पोम्स कर जाना, रोड साइड को छोड़ देना, लेकिन एक उसमें से आ सकता है, और ये उसमें से ही आया है, और ये था आपका कीपिंग क्वाइट का। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम आई होगी, बस वोकैबुलरी अच्छी यूज करनी थी आपको। नेक्स्ट इज राइट द पोम ऑफ द थीम ऑफ द पोम माय मदर एट 66। कमला दास की जो ये पोम है उसके बारे में आपने लिख दिया होगा डेफिनेटली। राइट द स्टिल थीम ऑफ द पोम रोड साइड स्टैंड, इसमें भी आपने लिख दिया होगा। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन, आप कितने ही टेस्ट चेक कर लें उसमें कितनी बार ये क्वेश्चन आया। थिंग ऑफ ब्यूटी से गिवन है। वाई वर आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग, उसकी फिंगर्स इस तरीके से क्यों फ्लटर हो रही थी, क्योंकि डर के मारे, हेजिटेशन के मारे बहुत ज्यादा, जब अंकल जो थे आंट जेनिफर पे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे। Why did the narrator imagine the थर्ड लेवल को नैरेटर ने क्यों इमेजिन किया था, उसके दिमाग और उसमें ब्लड में इस तरीके से सोल में बस गया था कि उसने उसको ऐसे मान लिया कि बस वो है ही है, वो स्टोरी में आपको गिवन है। Why did the narrator fall about the laughter, ये आपका V2 और ह्यूमन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से लिया हुआ है, जहाँ पे आपके पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों दे रखे हैं, वो भी आपके चैप्टर में गिवन है। Why did Gary want to go to meet Mr. Lamb second time, क्यों मिलना चाहता था, क्योंकि उसकी क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा हो गई थी और वो चाहता था कि ये नेगेटिव जो जी रहा है अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में रहे। डू यू एग्री विद सदाव एक्ट, ये आपका फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आया है जो आप खुद इमेजिन करके अपने अकॉर्डिंग बता पाए, ठीक है। इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट, नेक्स्ट आप देख लीजिए जो आपका लास्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन जो आता है। व्हाट इज, हु वाज लूसा, नैरेटर्स वाइफ। हाउ मेनी रिंग्स वर सेंट टू डेस्टिनी, जो कल भी मुझसे पूछा गया था, मैंने उसको कल भी यही बोला था बच्चे को कि 50 रिंग्स थी उसके हाथ में, यही आंसर मैंने बोला था। पर हाउ मेनी इयर्स गॉडमाना चाइल्ड, सब बच्चों को मैंने जब बात करी तो बच्चों ने मुझे बोला था 650 मिलियन, वहां पॉपुलेशन की बात हो रही थी कितने साल पहले, लेकिन यहाँ पर जो है 500 मिलियन इसका आंसर है। नेम ऑफ रशियन रिसर्च वेसल वॉज अकादमिक शुकर्स। What was the name of Sadav? Full name of Sadav. डॉक्टर सदाव तो हम बोलते थे, सदाव हॉनी, सदाव हैंकी, सदाव हॉकी, सदाव हॉकी। Hannah's baby boy was nearly, बहुत छोटा था, 3 months old का ही था। Who forbid Daddy to go to the garden again? Daddy's mother. Who was General Zitkala's friend? Who was Vedas? ये क्या है, व्हाट इज विद दिस, ये ईटिंग स्टफ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड पैसेज जो था मैंने आपको रखवाया था उस पर, रीड द फॉलोइंग पैसेज। द हैबिट ऑफ रीडिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ मैनकाइंड एंड वी एंजॉय रीडिंग बुक्स दैट belong to us much more than if they are borrowed. A borrowed book is like a guest in the house. It must be treated with punctualness, with a certain considerate formality. You must see that it sustains no damage. It must not suffer while under your roof. You cannot leave it carelessly. You cannot mark it. You cannot turn down the pages. You cannot use it familiarly. And then someday, although this is seldom done, you really ought to return it. But your own books belong to you. You treat them with that affectionate intimacy that annihilates formality. Books are for use, not for show. You should own no book that you are afraid to mark up or afraid to place on the table, while open and face down. A good reason for marking favorite passages in books is that this practice enables you to remember more easily the significant sayings, to refer to them quickly, and then later years it is like visiting a forest where you once blazed a trail. You have the pleasure of going over the old ground and recalling both the intellectual scenery and your own earlier self. यहाँ आप देख सकते हैं questions. Everyone should begin collecting a private library in youth. The instinct of private property, which is fundamental in human beings, can here be cultivated
with every advantage and no evils. Evils. One should have one's own bookshelves, which should not have doors, glass windows or keys. They should be free and accessible to the hand as well as the eye. The best of mural decorations is books. They are more varied in color and appearance than any wallpaper. They are more attractive in design and they have the prince advantage of being separate personalities. So if you sit alone in the room in the firelight, you are surrounded with intimate friends. The knowledge that they are there in plain view is both stimulating and refreshing. You do not have to read them all. Most of my indoor life is spent in a room containing 6,000 books, and I have a stock answer to the invariable question that comes from strangers. Have you read all of these books, some of them twice? This reply is both true and unexpected. Which one of the greatest resource of mankind? Definitely books. उसी से रिलेट करके आप आंसर लिखेंगे. What thing is like a guest in the house? गेस्ट क्या है हमारे हाउस में? इधर आप देख सकते हैं पूरा पैसेज ये दे रखा है. बोरोड बुक इज लाइक अ गेस्ट इन द हाउस. यहाँ पर मैंने आपको बोला बुक्स. आंसर में आपको मैंने आई टोल्ड यू बुक्स. रीडिंग ऑफ बुक्स, ये जो हैबिट है ना रीडिंग ऑफ बुक्स उसके लिए बात है. हाउ इज इट गुड टू मार्क द फेवरेट पैसेज? कैसे करेंगे ये फेवरेट पैसेज को गुड मार्क? यू कैन नॉट टर्न डाउन द पेज, यू कैन नॉट यूज इट फैमिलियरली. इस तरीके से आप मार्क कर सकते हो उसको. आपका मन ही नहीं करेगा. व्हाट इज द बेस्ट ऑफ म्यूरल डेकोरेशंस? यहाँ पर आया है म्यूरल डेकोरेशंस का क्वेश्चन लाइन. A good reason for marking favorite passage in book is that the particular practice remember more. ये तो ये हो गया. And what about mural? Mural यहाँ पर हम देख सकते हैं. इसमें से आपको आंसर मिल जाएगा उसका. हाउ मेनी बुक्स वर इन द नैरेटर्स रूम? यहाँ पर आंसर है उसका. हम सबके पास में होती है नैरेटर्स की कितनी थी? इन्हीं में से आंसर है. यू कैन सी 6,000 बुक्स. देख सकते हो. हाउ शुड अ बोरोड बुक बी ट्रीटेड? बोरोड बुक को कैसे ट्रीट करा जाता है? वो सेकंड में आपका आ गया कि गेस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है. स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस इज हेल्पफुल टू यू. ये आपके आंसर्स थे. होप बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग गेन कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच.